Welcome back, students. Good morning. In the continuation of last class, periodic classification of element. Last class we had discussed about the periodic classification as per the modern periodic table. Modern periodic table having the 18 groups, vertical lines, and 7 periods, means horizontal lines. Overall 118 elements have been discovered. Till few are under process, which are unnamed in this 118. Here we are going to see how the periodic elements in the modern periodic tables having the trends like what kind of properties they are showing as per the situation, as per the position of the elements. First of all, what kind of trends we will see in the modern periodic table? First, valency. Trends means characters. You can say what kind of characters they are regularly showing. Elements, what kind of characteristics of the elements are regular manner in the periodic table. periodic table में characters regularly कैसे अपने आप को पोजीशन वाइज शो करते हैं वो हम लोग चेक करेंगे. एज पर फर्स्ट वैलेंसी, सेकेंड इज एटॉमिक साइज, थर्ड इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, फोर्थ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, फिफ्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द लास्ट ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स. First of all, we had already discussed about the valency. Valency means the elements having the number of electron in their outermost shell. Those are used in the bonding that we had already discussed in the carbon and its compounds as well as metal and non-metal. There we had already discussed about the two type of bonding, covalent bonding and electrovalent bonding. In the covalent bonding, there will be sharing of electron. Metal and non-metal both are sharing few number of electron, either it is 1, 2 or 3, to make complete their outermost shell with the 8 electron or minimum 2 electron. So in the covalent bonding there will be sharing of electron to make it stable. In the electrovalent bonding, electron will be in the manner of donating and receiving. Metal is donating few number of electron, non-metal is receiving few number of electron. In that manner, metals bearing positive charge because they are removing the electron, donating the electron from its outermost shell, and non-metal is receiving the electron, extra electron in their outermost shell. That is why metal is become cation, means positive charge, bearing positive charge. Like suppose sodium is giving 1 electron, so it become Na plus. 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद सोडियम क्या हो गया, ये हम लोगों ने बात किया था मेटल नॉन मेटल में ऑलरेडी. क्लोरीन ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये हो जाएगा क्लोरीन माइनस. तो ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर रहे थे. दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, सो इन दिस वे मेटल, नॉन मेटल एंड different elements, they are making bonds to each other. Sorry. तो वैलेंसी क्या है? What is valency? Valency means the number of outermost cell electrons, those are used or participate in the bonding. तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया था. मीन्स देयर विल बी ओनली मैटर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो दोनों की वैलेंसी, सोडियम की भी वैलेंसी 1 होगी, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होगी. ठीक है. अब कार्बन की वैलेंसी चेक करते हैं. कार्बन नंबर ऑफ 6, टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 and 4. अगर हम उसको कॉन्फ़िगरेट करते हैं सेल वाइज,
इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 4, 2 and 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। मीन्स सपोज कार्बन इज यूजिंग दिस ऑल 4 इलेक्ट्रॉन टू मेक बॉन्ड, दैट इज व्हाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। उसी तरह से नाइट्रोजन 2 and 5। नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो सेल वाइज 2 and 5। So we are observing 5 number of electron in outermost shell, that is why you can say it is valency of nitrogen is 5। आप बोल सकते हो, लेकिन कभी कभी आपको वैलेंसी 5 ना दिख के इसकी 3 दिखेगी, बिकॉज you can say sharing of all 5 electron it is not possible. Maximum 4 electron can be shared, but in the sharing manner maximum 4 electron can be shared, but in the donating manner it can be donate all 5 also, 5 भी donate कर सकता है। तो there will be 2 type of trends or 2 types of valency you will find. This 5 will be 3 and 2। कभी कभी 2 भी होता है, कभी कभी 3 भी होता है। इस तरह से आपको चेक करने को मिलेगा कई जगह पर। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज द सिंपल वे इन द 10th स्टैंडर्ड यू मस्ट नो द सिंगल वन स्टेटमेंट दैट द आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड वैलेंसी ऑफ द पर्टिकुलर एटम और एलिमेंट। उस एलिमेंट या एटम का वो वैलेंसी कहलाता है। ठीक है, वैलेंसी। और वैलेंसी चेक करने के लिए अब सपोज वी हैव पीरियोडिक टेबल। हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में आप अपने चेक करते जाइए, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इस तरह से आगे पीरियोडिक टेबल आपका पूरा बना हुआ है। You can observe that we had already told that before starting the session or class you have to keep your NCERT book with you, so it will be very easy to understand the things। Okay, तो वैलेंसी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है? बढ़ेगी। याद रखिएगा, इन अ सेम पीरियड इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन द वैलेंसी विल बी इंक्रीज इन द पर्टिकुलर मैनर। उस समय तक वो बढ़ेगी, फिर उसके बाद वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब जाके देखिएगा, सपोज इट इज 3, 4, फिर उसके बाद बोरॉन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, फिर उसके बाद नोबल गैस आ जाएगा। देयर विल बी नोबल गैस लाइन। तो 3 के लिए मैं बनाता हूँ 2, 1, फिर इसके लिए 2, 2, फिर इसके लिए 2, 3, बोरॉन के लिए, कार्बन के लिए 2, 4, नाइट्रोजन के लिए 2, 5, ऑक्सीजन के लिए 2, 6। तो क्या ऑक्सीजन का, सपोज वी हैव ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की द नंबर ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्सीजन इज 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इज 8। So that 8 will be 2 and 6. Is 6 is the valency of oxygen? No. मैंने बोला था कि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है आप उसको वैलेंसी कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक, सिंपल वे पे। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे एक ट्रेंड्स तक, कुछ दूरी तक, ठीक है। कार्बन तक इट विल बी अप टू द कार्बन it will be exactly the number of valence electron, means total number of outermost shell electron, but after carbon it will be more than 4 electrons, so it will be either in the nitrogen case there will be 2 and 5, so 5 will be valency or it will be 3 और 2, ये दोनों होता है। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? सपोज वी हैव ऑक्सीजन 2 and 6, इस 6 इज द वैलेंसी। 6 टोटल वैलेंसी नहीं हो सकता,
अब ये 6 डोनेट नहीं करेगा, किसी से 2 ले लेगा। ऑक्सीजन इज नॉट एबल टू डोनेट ओवरऑल 6, इट कैन इजिली टेक 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये 2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी, माइनस में 2 वैलेंसी हो जाएगी। सो यू कैन से द ऑक्सीजन वैलेंसी इज 2। ऑक्सीजन की बहुत सारी वैलेंसी भी होती है, उसको बाद में हम लोग बड़े क्लास में आप देखोगे। उसी तरह फ्लोरीन 2 and 7, क्या 7 इसकी वैलेंसी होगी? नहीं। अब इसको 8 होने के लिए, टू बिकम अ 8 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस 7, इट कैन इजिली टेक 1 इलेक्ट्रॉन, एक ले लेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे क्लोरीन का किए थे 1। ठीक है, तो वैलेंसी will be vary in the period, in the up to the carbon it will be the same number of valence electron. After this it will be as per the requirement of the electron to make it octet of the outermost shell. There will be same in the manner in the up to down. सपोज यू आर गोइंग अप टू डाउन इन द पीरियड में अगर ऊपर से नीचे के एलिमेंट्स को आप ऑब्जर्व करोगे तो उनकी वैलेंसी सेम होती है, सॉरी ग्रुप में, सॉरी इट इज ग्रुप। अप टू डाउन मीन्स ग्रुप इन अ कॉलम एलिमेंट्स हैविंग द ऑलमोस्ट सेम वैलेंसी। सपोज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब इस इट इज 2, sorry, it is 1, it is 2 and 1, it is 2, 8 and 1, it is 2, 8, 8 and 1. See, the last electron is 1, means last outermost electron is 1, so you can say that all the elements in a group, in a column having the same valency 1, इसके बाद जो कॉलम आएगा उसका 2 मिलेगा आपको, फिर उसके बाद 3 मिलेगा, फिर ऐसे कुछ समय तक वो सेम चलेगा, फिर उसके बाद वो भी उसी तरह से चेंज होगा, अपने हेड की तरह, ऊपर वाले एलिमेंट की तरह वो भी चेंज हो जाएगा। मीन्स इन अ ग्रुप देयर विल बी सेम व्हाटएवर द लेफ्ट टू राइट वैलेंसी ऑफ द अपर मोस्ट एलिमेंट वैलेंसी, so the just lower elements having the same valency in a column. Okay, now second point is atomic size. Atomic size, how atomic size can be justified? Atomic size means atom का size. Suppose we have atom like lithium. We have lithium means 2 and 1. Then we have sodium. लिथियम के जस्ट नीचे क्या आता है? सोडियम 2, 8 and 1. It is the configuration, cell wise configuration of the element. So you can easily justify that sodium is bigger than lithium. Why and how? Because it is already given one extra cell in the sodium, so that is why you can judge easily that it is larger or bigger than lithium. So what is the atomic size? How can you justify? Atomic size means the distance between center of the atom to outermost cell. outermost cell और center के बीच की जो दूरी है that is called atomic radius, or you can say it can be helpful to check the atomic size. So इसका साइज जो भी होगा इसके साइज से छोटा होगा, ये आप चेक कर सकते हो। मतलब बहुत आसान है, जब आप ऊपर से एलिमेंट, ऊपर के एलिमेंट और उसी ग्रुप के नीचे एलिमेंट में आप जाते हो तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी, ड्यू टू द एडिंग वन एक्स्ट्रा सेल 1 by 1। इसी तरह से इसके नीचे आप चेक करोगे
पोटेशियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम में क्या होगा 19 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 8 8 18 एंड 1 90 मीन्स देयर विल बी 4 सेल, देयर इज 3 सेल 1 2 3 in the potassium. In the case of potassium there will be 4 cell, so 1 cell again added in the potassium, that is why potassium is larger than sodium. Up to down, ये अप टू डाउन के केस में। अब हम लोग देखते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट फिर से बना लेते हैं, लिथियम 2 1 लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन 2 1 2 2 2 3 2 4. What you are observing in this picture, it is very clear that suppose you are going left to right, left to right, left to right in a periodic table. So you will find that the trend of atomic size it will be decrease. देखिए थोड़ा थोड़ा changes आपको दिखेगा, the size is decreasing. Why it is decreasing? There is also very important things and question that suppose you are going left to right in the same cell. Observe in the same outermost cell there is 1 electron, there is 2, there is 3, there is 4. Means in the same electron in the same outermost cell electrons number of electron is increasing. So what effect will be there in the atomic size? उससे atomic size में क्या effect पड़ेगा? So देखो, that we had already discussed in class 9th. In the nucleus, in the center of the atom having the positive charges, and in the cell of the atom having the electron having minus charge, center means having the proton means positive charge. Positive charge is attracting all the electrons that atom having. Okay, that is why the number of electron is increasing in outermost cell. In the same time number of proton means positive charge also increasing in the center of the atom. So that positive charge is attracting the outermost electron toward the nucleus. न्यूक्लियस की तरफ वो खींच रहा है। कौन खींच रहा है? The proton is attracting the outermost electron as per the increasing of number of electron. That is why the size is decreasing slightly when you go left to right. तो सिंपल समझिएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे आउटर मोस्ट सेल में, सेम सेल में, वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में यानी सेंटर में बढ़ता जाएगा. दैट पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टिंग द सेम मैनर टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल. दैट इज व्हाई इट विल बी डिक्रीजिंग. ये क्या होगा? डिक्रीज करता जाएगा लेफ्ट टू राइट. when you go in the period horizontal line, the number of electron is increasing in the same cell में increase कर रहा है ना. अब अप टू डाउन में जा रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था. 1 से 3, 3 से 11, 11 से 19 हो रहा था सोडियम पोटेशियम के केस में, लेकिन सेल भी बढ़ते जा रहे थे, इसलिए वहां पर ये इफेक्ट नहीं काम कर रहा था. यहाँ सेम सेल पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ते जा रहा है, इसलिए न्यूक्लियस क्या कर रहा है? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जिससे इसका साइज छोटा होता जा रहा है. क्लियर? एक्टिविटी 5.6 एंड 5.7 वैलेंसी और एटॉमिक साइज के बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसमें क्वेश्चन है. एटॉमिक साइज को पिकोमीटर में मेजर किया जाता है. एटॉमिक साइज पिकोमीटर में कैलकुलेट किया जाता है. तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द माइनस 12 मीटर. You can imagine that how atoms are small. 1 picometer, PM means picometer, given in your textbook. Picometer.
1 picometer means there will be 10 to the power minus 12 means 10 1 का 1 मीटर से और 12 पार्ट नीचे जो साइज बनेगा वो आपका होगा 1 पिकोमीटर मीन्स देयर आर वेरी माइनर साइज एंड वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल साइज ऑफ द एटम हैविंग। क्लियर? तो एटॉमिक साइज का ट्रेंड्स क्या है? ध्यान रखिएगा, इन दिस पोर्शन atomic size of the elements there will be many type of question will be framed in your examination where you will be asked, you will be given sequence, that sequence will be disordered, will be asked to arrange the sequence as per the atomic size. There will be given the picture only and you will be asked that justify the name of the elements will A B C D, so you will have to arrange the as per the atomic size. तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, बहुत इजी होता है, बस कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि क्या है। लैब टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या होगा। हाँ, इसके लिए फॉर दिस ऑल वैलेंसी एटॉमिक साइज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर यू हैव टू स्टडी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटलीस्ट अप टू 30 नंबर ऑफ एलिमेंट। 30 नंबर तक के एलिमेंट्स को आप लेफ्ट टू राइट पढ़ लीजिए, अप टू डाउन अच्छे समझ लीजिए, सो दैट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हाउ द ट्रेंड्स इज फॉलोड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाइक वैलेंसी एटॉमिक साइज। चलिए अब बात करते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर की। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर, यू आर हैविंग द पीरियोडिक टेबल इन पेज नंबर 86 the NCERT book. You can easily observe that in from the 30 number of group from boron, silicon, germanium, arsenic, tellurium and polonium, there will be pink color zigzag indication given in your modern periodic table. So how this pink color zigzag indication justified and how it is given in this manner, that is zigzag line is showing the you can say a separate category of element in the periodic table. अब हम लोग बात करते हैं वो है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, as you have completed metal and non-metal, suppose periodic table, it is periodic table, overall periodic table. So left side it is right side, left side is metal. First of all, left side of the periodic tables having the nature of metal, right side is having the nature of non-metal. और आप मेटल नॉन मेटल अच्छे से समझते हैं बिकॉज ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, ओवरऑल चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल मीन्स द मटेरियल्स दोज आर फिजिकली, इफ यू आर ऑब्जर्विंग, मेटल्स आर हार्ड, रिजिड, malleable, ductile and the just opposite characteristics bearing the non-metal. But as per the chemical characteristics, metals having the one common characteristics that losing electron, that we had discussed in the last you can say in the chapter metal and non-metal. Metals having the trends and feature to lose the electron, to remove the electron, and non-metal having to gain the electron. metal इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल क्या करते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, ये इनके करते हैं। और जो जिगजैग लाइन, ये जो जिगजैग लाइन मिल रहा, जिगजैग, इसको जिगजैग मींस टेढ़ा मेढ़ा जो लाइन पिंक कलर का दिख रहा है, दैट इज metalloids, that you had also discussed, that one thing also we had discussed in the last chapter, metal and non-metal. Metalloid means the some kind of materials
or you can say elements, those are having the feature and characteristics of both metal and non-metal. Sometimes it behave just like metal, sometimes it behave like a non-metal. So that type of elements having a separate category in the periodic table in the zigzag line pink colored boxes, that is called metalloid, like boron, silicon, germanium. These are the metalloid, or you can say semi metal. Okay, or you can say semi metal. क्लियर? अब इस पे हम लोग को क्वेश्चन कैसा मिलेगा ये हम लोग देखते हैं. ठीक है, what kind of question will be asked in the examination from the metallic and non-metallic and metalloid properties of the periodic table. सपोज एक चीज और ध्यान रखेंगे हम लोग, मेटल्स आर लाइज इन द लेफ्ट साइड. अब ये कहाँ तक मेटल है ये कैसे पता चलेगा? सो दैट विल बी आइडेंटिफाइड एज पर इट्स कैपेसिटी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन. तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा. यहाँ पर आप जब आई एम टेकिंग लिथियम, बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये तो आपका नोबल गैस हो गया. नोबल गैस कोई रिएक्शन नहीं करते हैं बिकॉज दे आर हैविंग फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. फिर उसके बाद ले लेते हैं हम लोग सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, आपका हो जाएगा ये सल्फर एंड क्लोरीन, एंड नियॉन के बाद आपका हो जाएगा आर्गन. ये कुछ ले लेते हैं हम लोग ऐसे. Here especially the group number 1, 2 and some of the element of 3 like aluminium, these are having the tendency to lose electron. ये अब कैसे पता चलेगा? जब हम स्टडी करने लगेंगे, जब यू सपोज यू आर गोइंग टू क्लास 11th in the up to the class 10th, you have only the few number of elements that particular you know those are removing the electron, those are receiving the electron. तो कुछ समझ लीजिए, ये पहले दूसरे ग्रुप 1 and group 2, group 1 और group 2 overall they are metals, and in the group 3 नीचे में जब पीरियडिक टेबल देखेंगे आप, see the periodic table, page number again 86, group 1, group 2, group 1, group 2 and group 3 to 12 overall they are metals. Clear? And group 13 means boron, carbon, इस तरह से 13, 14 शुरू हो जाएगा. 13 to 17 स्पेशली दे आर नॉन मेटल, बट few of the 13, 14 and 15 those are having in green color. There is special indication given. Green color are metals, a little yellow color are non-metal, and pink color zigzag line are metalloid. Means overall left side are the metals, right sides are the non-metals, and in the middle line zigzag pink color boxes are metalloid. Clear? So पहले तो शुरुआती में आपको जानने के लिए पहला दूसरा जो भी ग्रुप के एलिमेंट्स है दे आर मेटल्स बिकॉज दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन. कैसे लूज करते हैं मैं बता चुका हूँ. सोडियम का 11 है, अब ये कैसे करेगा? सोडियम 10 बन जाएगा. कैसे? बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड. इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? रिमूव कर दिया.
So you can justify the sodium is a very good metal because it can easily remove the electron. Chlorine having 17, receiving 1 electron, so it become chlorine 18. अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से माइनस, और ये कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यानी अब प्रोटॉन ज्यादा हो गया इसलिए पॉजिटिव। तो इस तरह से ये दोनों आपस में, दिस इज सोडियम इज अ प्लस एंड क्लोरीन इज अ माइनस, सो डिफरेंट चार्जेस विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। दोनों के अलग चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रिकली डिफरेंट हो गए, और इलेक्ट्रिकली डिफरेंट चार्जेस दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड बाइंड। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग जो हम लोगों ने पढ़ा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिकली डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो बॉन्डिंग करते हैं। तो ये मेटल और नॉन मेटल की भी जो बॉन्डिंग हम लोगों ने देखा था, उसी तरह से MgCl2 हो जाएगा, KCl हो जाएगा, बहुत सारे आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेटल और नॉन मेटल के पोजीशन वाइज, और मेटल और नॉन मेटल क्या। अब इसी में एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अब देखते हैं यहाँ पे वैलेंसी वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, एटॉमिक साइज, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने पोजीशन वाइज देख लिया। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, the elements those are having the trends to remove the electron, they are electropositive, means metals are electropositive. Simply in the simple way you can say metals those are having, or elements those are having to remove the electron and bearing positive charge। जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे वो पॉजिटिव चार्ज बियर करेंगे, इसका मतलब दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रिकली वो क्या है, पॉजिटिव। दैट इज व्हाई मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसी का जस्ट अपोजिट, द एलिमेंट्स दोज आर हैविंग द ट्रेंड्स टू बियर माइनस चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज, दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव। मीन्स chlorine is having the tendency to catch the electron and bear the minus charge, so that is why it is called electronegative, and the tendency of attracting the electron is called electronegativity। याद रखिएगा electronegativity, sometime the question will be asked from the electronegativity portion। electronegativity एक चीज आपको बता दूं, सपोज अब इसका भी ट्रेंड्स देखते हैं, इन दोनों का ट्रेंड्स देखेंगे आगे। इसका ट्रेंड्स तो मैं बता दिया, सिंपल लेफ्ट और राइट का और सेंटर का पोजीशन है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड्स देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है और अप टू डाउन जाने पे क्या होता है। अब आपको एटॉमिक साइज वाला कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले एटॉमिक साइज और वैलेंसी सब दिया था, सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे फॉर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। सपोज वी आर गोइंग अप टू डाउन इन अ पीरियोडिक टेबल, तो अप टू डाउन जाने पे क्या होता है, सेल बढ़ता है। ये हो गया आपका लिथियम का, ये हो गया सोडियम का, ये हो गया पोटेशियम, लिथियम, sodium, potassium। So you can easily observe the size is increasing, sorry, I was telling left to right means up to down। Suppose we are going up to down in a periodic table, the size is regularly increasing after due to adding of one extra electron in each state। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसकी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी कि घटेगी, बताओ। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या, टेंडेंसी ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, तो कौन जल्दी रिमूव करेगा, लिथियम करेगा जल्दी रिमूव, ये सोडियम करेगा या पोटेशियम करेगा, बताइए। सो यू कैन इजीली आंसर दैट सोडियम कैन इजीली रिमूव, सोडियम कैन इजीली रिमूव। तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा, सबसे ज्यादा ये, फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद लिथियम, ये एक बन जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल बी व्हेन यू गो अप टू डाउन, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल बी इंक्रीजिंग,
सबसे जल्दी ये रिमूव करेगा। क्यों रिमूव करेगा? सीधे सीधे सेंटर से देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी। सपोज यू आर checking the atomic size. Sodium is larger than potassium is larger than sodium, and sodium is larger than lithium. In this case, one second. अब इसमें हमको बताना है कि हाउ पोटेशियम कैन रिमूव इजीली इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द देयर विल बी मोर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू outermost electron, and outermost electron can easily escape. outermost electron न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है outermost electron पे वो कम है, means nucleus is attracting in all the cases, but in this case of potassium nucleus is not able to hold the outermost electron due to the long distance. So that is why potassium can easily remove. Then जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होते जाता है मेटल्स के लिए। तो अप टू डाउन जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल बी इंक्रीज। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। और लेफ्ट टू राइट जाने पे फिर वही इसका उल्टा, लेफ्ट टू राइट जाने पे हम जानते हैं कि एटॉमिक साइज छोटा होते जाता है। तो एटॉमिक साइज छोटा होगा तो आउटर मोस्ट सेल का होल्डिंग न्यूक्लियस से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। सो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल बी डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, अपोजिट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी जस्ट अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बिकॉज इट इज द टेंडेंसी ऑफ बियरिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बियर करने का कैपेसिटी है, तो इसको जस्ट इसके अपोजिट समझेंगे आप। तो ये हो गया ऑलमोस्ट ड्यू टू द कट ऑफ द पावर मे बी इट विल बी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व द बोर्ड कंटेंट। एक लास्ट टॉपिक मैं बताना चाहूँगा आपको, ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट। जनरली हम लोगों ने ये चीज पढ़ा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, मेटल्स ऑक्साइड, द मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेस इन नेचर। ये भी आप समझ लीजिए, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेस बनाते हैं। जैसे NaO सोडियम ऑक्साइड, वाटर मिला देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू नो दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वेरी गुड बेस। उसी तरह से नॉन मेटल ऑक्साइड, द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दे टेंड्स टू बी अ एसिड, वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं because of the that oxides show the acidic nature। तो एक चीज और बताना था, ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट मीन्स metals oxides are basic and non-metals oxides are acidic। Clear? Almost this chapter have been completed। Whenever we will feel the any kind of escape of this chapters topics, so we will discuss in our next class. Okay, thank you.